والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. یہ وائس کلیئر ہے نا؟ آواز صحیح ہے؟ آواز صحیح ہے؟ وائرلیس مائک لگا ہوا ہے، نیا مائک ہے، ٹیسٹ کر رہے ہیں. آواز صحیح ہے سر بھائی جمال جی الحمدللہ صحیح ہے. دیکھو تم ہو نہیں رہا بابو، کیسے ہو گیا پھر؟ ٹھیک ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو کلاس نہیں کر پائے تھے وہ دیکھ لیے ہیں ریکارڈنگ، کم سے کم اردو پیج سے پڑھ لیے ہوں کہ ہم لوگ ریویژن کر رہے ہیں بک تھری کا چیپٹر تو ہو گیا تھا. اس کے بعد ہم لوگ یہ اردو جو کلید ہے کی بک ہے اس سے ہم لوگ ریوائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 3-4 پیج کر لیا ہے اور یہ جو ہے کچھ اور 4-5 پیج انشاءاللہ کریں گے. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کر رہے تھے؟ اعراب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعراب کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ پوچھے گا اعراب کیا ہوتا ہے تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اعراب کیا ہے؟ اعراب کیا ہوتا ہے تو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ تو ورڈ کے آخری جو حرف ہوتا ہے ورڈ کا، اس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. صحیح آپ نے اسی کا تھوڑا بہت یہاں پہ وضاحت کر دیا گیا جو پچھلے کلاس میں تو کی. ٹھیک ہے. اعراب یعنی کہ وہ تبدیلیاں، وہ چینجز جو اسم کے آخر میں اور فعل کے آخر میں، فعل مضارع کے آخر میں جو دکھتا ہے آپ کو. ٹھیک. وہ چینجز جو کسی کی وجہ سے، کسی ایک چیز کی وجہ سے، کچھ عامل کی وجہ سے، کچھ عمل کرنے والے کچھ ایجنٹ کی وجہ سے، کچھ وجوہات کی وجہ سے جو ہے کچھ تبدیلیاں اسم کے آخر میں ہوتی ہیں، چینجز ہوتی ہیں. اس چینجز کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب. اب اسم تو الگ الگ طرح کا عربی زبان میں، اسم الگ الگ طرح کا عربی زبان میں ہے. تو اسی حساب سے جو ہے ہم لوگ کچھ مطلب جو کیونکہ الگ الگ طرح کا اسم پایا جاتا ہے اس میں الگ الگ اعراب ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے اسم کیا ہوتا ہے تب چینج ہوتا ہے. تو جمع مذکر سالم یہ پڑھیں گے. آپ میں سے کون پڑھنا چاہے گا اس کو؟ تو پڑھ لیتا ہے آپ سب نا. جمع مذکر سالم اس کو پڑھنا ہے. جمع مذکر سالم یہ والا جی. جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں. کون پڑھنا چاہے گا؟ جی پڑھیں ہم. ہاں جی پڑھیے. جمع مذکر سالم اس طرح کے اسماء حالت رفع میں اونا اور حالت نصب اور جر میں اینا پر ختم ہوں گے. جیسے دخل المدرسون الفصل، دخل المدرسون الفصل. اسماء پڑھیے. اساتذہ، استاد کلاس میں داخل ہوئے، استاد کلاس میں داخل ہوئے، اساتذہ کلاس میں داخل ہوئے. یہاں المدرسون مرفوع ہے، یہاں المدرسون مرفوع ہے. آپ دوسرا اگزامپل دیے ہیں ما سألت المدرسین، ما سألت المدرسین میں نے استاد سے نہیں پوچھا. یہاں المدرسین منصوب ہے. ٹھیک ہے. اب تیسرا پڑھیں اور آگے پڑھیں. پڑھیے تھرڈ لائن جی پڑھیے. اذان ہو رہا ہے، میری آواز سنائی دے گا آپ لوگوں کو؟ ہاں سنائی دے رہا ہے. اچھا ٹھیک. این غرفۃ المدرسین، این غرفۃ المدرسین استاد کا کمرہ، اسٹاف روم کہاں ہے؟ یہاں المدرسین، یہاں المدرسین مجرور ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے بارک اللہ فیک. نوٹ: یہ حالت جر اور حالت نصب دونوں کی علامتیں یکساں ہیں. اضافت کی حالت میں واو نون اور با نون، اضافت کی حالت میں واو نون اور یا نون کا نون حذف ہو جائے گا. ابھی ہم کچھ ایکسپلین کرتے ہیں اس کے بعد. جی جی.
यहाँ पे आप देख लीजिए जमा मुज़क्कर सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम किसको कहते हैं? जो एंड होता है अ, ऊना और ईना साउंड पे, ठीक है। ये हम लोग समझे जमा मुज़क्कर सालिम इस तरह के जमा को कहते हैं। अ, जो जमा जो होता है जब उसका जो वाहिद का तरतीब होता है वो बरकरार है, ठीक है। ऐसा जमा इसका वाहिद का तरतीब मैंने सिंगुलर में जैसा होता है प्लूरल जमा में भी वैसे ही होता है, बस कुछ इजाफी हर्फ आखिर में लगा दिया जाता है जिससे वो जमा सालिम कहते हैं। हुरूफ का जो तरतीब, हुरूफ की तरतीब को बिगाड़ते नहीं। हुरूफ की तरतीब या हरकत या हुरूफ का बीच में कुछ जैसे तालिबुन तुल्लाबुन, ठीक है, ताजिरुन तुज्जार, ये ता था तू बन जा रहा है, ऐसा बिगड़ता नहीं है तरतीब, बस एंड में ऊना लगा देते हैं। इस तरह के जो अल्फाज है जमा मुज़क्कर सालिम एक मिसाल दी गई है अल मुदर्रिसून, ऊना साउंड अ, इस तरह के अस्मा हालत रफ़ा में, यानी कि जब हालत रफ़ा में होते हैं ऐसे अस्मा, यानी कि जब ऐसे अस्मा मरफू होते हैं तो ऊना साउंड पे क्या होते हैं, ठीक है, ऊना साउंड पे एंडिंग होता है। और जब ये मंसूब होते हैं या मजरूर होते हैं तो ईना साउंड पे खत्म, ठीक है। ये बताया गया, जैसे एक एग्जांपल दी गई है दखल अल मुदर्रिसून, फेल दाखिल हो, कौन दाखिल हो, अल मुदर्रिसून। तो मुदर्रिसून यहाँ पे जब दखला फेल है तो अल मुदर्रिसून क्या है, फाइल। मुदर्रिसून क्या है, फाइल। और फाइल हमेशा क्या होता है, मरफू। फाइल हमेशा क्या होता है, मरफू। फाइल किसका दखल है, ठीक है। अब जब मरफू है ये तो कोई पूछेगा कि भाई मरफू है तो फिर ये तो एंडिंग इसका तो पता पर हो रहा है, हम कहेंगे नहीं पता पर एंडिंग तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन मरफू की अलामत ये नहीं। मरफू की अलामत जो है वो ये फतह नहीं है। क्यों? क्योंकि फतह वो सिर्फ सिंगुलर जो नॉर्मल तरह का इसम होता है, नॉर्मल इसम जनरल इसम होता है, उसमें हम देखते हैं उसका एंडिंग देखा जाता है। नॉर्मल इसम होता है, इसम मुफ्रद वाहिद सिंगुलर इसम, तो स्पेशल तरह का इसम नहीं होता, उसमें होता है कि एंडिंग देख करके फैसला करते हैं कि कौन सा हालत में है। तो मंसूब तो ये दिख रहा है मंसूब, लेकिन मंसूब नहीं क्यों, क्योंकि ये जमा मुज़क्कर सालिम है। इसे जमा मुज़क्कर सालिम में एंडिंग वाव नून, ठीक है। और अगर खास करके बताया जाए कि भाई मरफू की अलामत इसमें क्या है, तो यहाँ तो वाव नून आसानी के लिए बताएगी, एक्चुअल मरफू की अलामत क्या है यहाँ पे, वाव, ठीक है। जमा मुज़क्कर सालिम में मरफू की अलामत क्या है, वाव, ये मरफू की अलामत, ठीक है। तो मुदर्रिसून असातिज़ा दाखिल हुए, कहाँ दाखिल हुए, अल-फस्ला, ये मंसूब है, मफूल भी दखला। तो असातिज़ा दाखिल हुए क्लासरूम, असातिज़ात में दाखिल, ये बताया गया। वाव नून जो है यहाँ मुदर्रिसूना मरफू है, यहाँ मुदर्रिसूना मरफू क्यों मरफू है, वाव नून एंडिंग होने की वजह से। पूरा एग्जैक्टली कहे तो वाव मरफू की अलामत, ठीक है। सेम यहाँ पे देखिए दूसरी मिसाल है, मा सअलतुल मुदर्रिसीन, ठीक है। मा ये नाफिया है, नफी कर नहीं, तो सअल तो मैंने पूछा, आई आस्क, मा सअल तो मतलब हो गया मैंने नहीं पूछा, ठीक वही है, मैंने नहीं पूछा, किससे मैंने नहीं पूछा, असातिज़ा से, मैंने असातिज़ा से नहीं पूछा, आई डिड नॉट आस्क टीचर्स। तो सअल तो मैंने पूछ लिया, मैंने नहीं पूछा, इसका ये मैंने नहीं पूछा, सवाल पैदा हो रहा है किससे नहीं पूछा, तो मफूल की ज़रूरत, समझ रहे हैं ना आप लोग, मफूल की ज़रूरत। तो ये क्या हो गया फिर, यहाँ पे मफूल भी है, मफूल भी है, और ये मंसूब है। मा सअलतुल मुदर्रिसीन, ऊपर में क्या था, मुदर्रिसूना, नीचे क्या है, मुदर्रिसीना। और फिर एक अच्छा मंसूब है, तो मंसूब की अलामत क्या है, फतहा है, ठीक है। सही है, कोई कहता है मंसूब की अलामत फतहा है, ये देखो मंसूब है, हाँ मंसूब का सही बात है, लेकिन क्या अलामत पता है, तुम कहेंगे मुझसे क्या कि नहीं, फतहा अलामत नहीं है, भले वो फतहा पे एंड हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम में जो मंसूब होता है सिर्फ, और मजरूर जिसमें एंडिंग क्या होता है, ईना पर एंडिंग होता है, ईना साउंड ही मंसूब की अलामत है। और एग्जैक्टली अगर कहे तो क्या है, ये मुझे मुदर्रिसीन, या मुदर्रिसीन, ये मंसूब या मंसूब की अलामत, ठीक है। तो बता दिएगा यहाँ पे अल मुदर्रिसीन क्या है, मंसूब है, और मंसूब की अलामत क्या है, या, समझ रहे हैं। के बाद मजरूर की मिसाल, अय्न गुरफतुल मुदर्रिसीन, अय्न गुरफतुल मुदर्रिसीन, और क्लियर कर लेते हैं इसको, कहाँ है असातिज़ा का कमरा,
कि असातिज़ा का बंदा कहाँ है। गुरफतुल मुदर्रिसीना ये कैसा स्ट्रक्चर है नाहू के एतबार से, ग्रामर के एतबार से कैसा ये स्ट्रक्चर मुदाफ चल रहा है। मुदाफ मुदाफ इलैह। हाँ मुदाफ मुदाफ इलैह, जाहिर सी बात है जब मुदाफ मुदाफ इलैह तो गुरफत मुदाफ है, अल मुदर्रिसीना फिर क्या हो गया मुदाफ इलैह हो गया। मुदर्रिसीना क्या मुदाफ इलैह, ये मजरूर है इसका मतलब। मजरूर है तो मजरूर की अलामत क्या है भाई, पता नहीं। ये जमा मुज़क्कर सालिम एंडिंग कीना देखते हैं, कीना एंडिंग मजरूर की अलामत है, और प्रिसाइजली एग्जैक्टली कहते हैं ये या मजरूर की अलामत, ठीक है, या मजरूर की अलामत है, ठीक है। असातिज़ा का बंदा कहाँ है, तो यहाँ अल मुदर्रिसीना। तो जितने भी जमा मुज़क्कर सालिम वाला जो अल्फाज है, ठीक है, वो सब उसमें मरफू की अलामत, मंसूब की अलामत और मजरूर की अलामत जो है वो दम्मा फतह कसरा नहीं, ठीक है। सवाल करते हैं कि इससे अजगर भाई सही है, तो पूछा जाए जमा मुज़क्कर सालिम में मरफू की अलामत क्या है और मंसूब मजरूर की अलामत क्या है, क्या जवाब दीजिए। जमा मुज़क्कर सालिम में अलामत क्या है, मरफू मंसूब और मजरूर की, आंसर क्या होगा जी। एक बार सवाल रिपीट करेंगे सर, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, आवाज सही है क्या। आवाज थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है सर, आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। हाँ जी अभी देखिए, अभी सही है क्या आवाज। जी अभी थोड़ा ठीक हुआ। जी आवाज सही है ना। कह रहे थे कि आपका ये मजरूर, कोई पूछे यही चीज खुलासा पूछ रहा है आपसे, जमा मुज़क्कर सालिम में मरफू मंसूब मजरूर की अलामत क्या क्या है। अभी जो हम लोग रखना किए हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मुस्लिम मुस्लिमूना, मुस्लिमूना में मरफू मंसूब मजरूर की अलामत क्या है, ये सवाल है। ऊना ऊना जो है वो तो मरफू का अलामत हो जाएगा, माने जमा मुजक्कर सालिम में, ठीक है। हाँ और ईना जो है वही नसब भी रहेगा और ईना जर में भी आएगा, हाँ दोनों में यही आएगा एग्जैक्टली, ईना। एक्चुअली में कौन सा हर्फ है जो मरफू की अलामत, दोनों वाव नून एक्चुअली दोनों में या तो फिर वाव वाव हो गया ना सर, मरफू का अलामत वाव हो गया, और नसब अजर में यह जो है ये इसका अलामत हो गया, नसब और अजर का। ठीक है। सब वर्जन में ये अलामत क्या है, या है, क्या है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे इसका एराब जमा मुज़क्कर सालिम, कोई भी अल्फाज ले लीजिए, मुस्लिमूना, काफिरूना, ठीक, मुशरिकूना, सब में ऐसे हैं। काफिरूना तो क्या होगा, काफिरूना, काफिरीन, काफिरीन, ठीक है। मुशरिकूना, मुशरिकीन, मुशरिकीन, मुनाफिकूना, मुनाफिकीन, मुनाफिकीना, इस तरीके से, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे नोट दिया हुआ था कि वही चीज़ है, तो हमें क्या समझ में आया कि हालत जर और हालत नसब यानी कि मजरूर और मंसूब दोनों में अलामत यकसा है, एक ही अलामत, सेम अलामत, ठीक है। हाँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं कि जब ये इजाफत की हालत में वाव और नून, वाव नून और या नून का नून क्या हो जाता है, हज़फ हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब ये जो अल्फाज हम लोग पढ़ रहे हैं जमा मुज़क्कर सालिम है, ये जब इसको मुदाफ, ये कभी कभी मुदाफ भी बन सकता है ना, ऐसे अल्फाज आप भी बन सकते हैं, ठीक है। तो जब ऐसे अल्फाज मुदाफ बनेंगे तो उनका वाह, उनका जो है नून गायब हो जाएगा, उसका नून गायब हो जाएगा, कैसे, ये मिसाल दी गई थी। आई ना मुदर्रिसुल, आवाज सही है ना अभी, आवाज साफ है ना। जी जरा लो है लेकिन साफ है। अच्छा, एक मिनट थोड़ा बढ़ा दे। हाँ देखिए आप अभी ठीक है आवाज, तो थोड़ा बैकग्राउंड भी आने लगेगा, सही है ना ठीक अभी। है सर कंटिन्यू कीजिए, हाँ ठीक है सर कंटिन्यू कीजिए। तो,
हाँ तो कह रहे हैं कि ये अल्फाज जमा मुज़क्कर सालिम जब मुदाफ बनते हैं तो क्या होता है, ये चीज़ बताएगी। ठीक है, अयना ये वाला एग्जाम्पल देखिए, अयना मुदर्रिसुल कुरआन, तो यहाँ पर ये मुदाफ मुदाफ लेगी, मुदर्रिसुल कुरआन, ठीक है, यानी कि कोई करीम और पढ़ाने वाले असातिज़ा, ठीक है, ये माने होगी कुरान करीम के असातिज़ा, टीचर्स ऑफ द कुरान, ये माने मुदर्रिसूना अल कुरआन, ये मुदाफ मुदाफ लेगी, मुदर्रिसूना वो कुरआनी, तो मुदर्रिसूना अल कुरआनी, मुदर्रिसूना नून था ना, नून अब देख रहा सब हो गया, मुदर्रिसुल कुरआनी पढ़ा जाएगा, ये वाव पढ़ा भी नहीं जा रहा, क्योंकि दो सुकून मिल जा रहा है, वाव में सुकून ही है ना, तो सुकून मिल जा रहा है, लाम का सुकून वाव का सुकून, तो वाव पढ़ा नहीं जाएगा, लिखा जाएगा पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये अलिफ का वसल है, लिखा जाएगा पढ़ा नहीं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मुदर्रिसुल कुरआन, ठीक है, मुदर्रिसुल अयन, मुदर्रिसुल कुरआन, कुरान करीम पढ़ाने वाले असातिज़ा, मुदर्रिसुल हदीस, हदीस पढ़ाने वाले असातिज़ा, समझ रहे हैं। ठीक है, मुदर्रिसुल, ठीक है, इस तरीके से कहना है कि हिंद के, इंडिया के मुसलमान कैसे कहेंगे, मुस्लिमूना और अल हिंद, मुस्लिमूना और अल हिंद, मुदाफ मुदाफ लिए बनाएंगे, क्या होगा, मुस्लिमूना और अल हिंद, हिंद के मुसलमान मुस्लिमुल कहते हैं। हिंदी, मुस्लिमुल हाँ हिंदी। सही, मुस्लिमुल हिंद, यानी कि वाव उसका नून जो हज़फ हो जाएगा, ये बताना चाहे। ठीक है, तो जो आलाम जो नून हज़फ हो जाए, ठीक है, उसके बाद में देखिए अरअयता, अरअयता, ठीक है, रअयता माने कि तुमने देखा, अरअय क्या तुमने देखा, क्या तुमने, ठीक है, देखा, किसको देखा, कुरान करीम पढ़ाने वाले असातिज़ा को क्या तुमने देखा, क्या तुमने कुरान करीम पढ़ाने वाले असातिज़ा को देखा, तो कुरान करीम पढ़ाने वाला असातिज़ा कहाँ है, यहाँ है, ये माने टीचर्स ऑफ द कुरान, तो मुदर्रिसूना अल कुरान ये था, लेकिन क्योंकि रअयता है, रअयता क्या है, ये फेम तुमने देखा, सवाल पैदा होता है किसको देखा, किसको देखा, तो मुदर्रिसूना से क्या हो जाएगा, ये मुदर्रिसीना, मफूल भी बनेगा ना, रअयता तुमने देखा किसको, मुदर्रिसीना असातिज़ा को। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना, समझना अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, रअयतु मुदर्रिसीना, रअयतु मुदर्रिसीना, मफूल भी ये मुदर्रिसीना, यहाँ एक मसला क्या है कि मुदर्रिसीना को मुदाफ बना रहे कुरान की तरफ, मुदर्रिसीना मुदाफ बन रहा है, जब मुदाफ बनेगा तो पहले सुपर देख लिए, हज़फ हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हज़फ हो जाएगा, क्या बचेगा, वो या बचेगा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे उसको, मुदर्रिसिल कुरान, या पढ़ने में भी गायब हो जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पर सुकून है, अलाम पर भी सुकून है, सुकून सुकून ये पर यहाँ हट जाता है, तो मुदर्रिसिल कुरान, मुदर्रिसिल कुरान, ठीक है, ये यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, जर में भी यही होगा, हालत जर में भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, चलिए नून के बारे में एक नोट दिया, और नून की मजीद अहकाम इंशाअल्लाह सबक नंबर 9 में आएगी, ठीक है, आएंगे। ठीक है, तो ये समझ गए ना, यहाँ कोई डाउट है तो पूछिए, मुदर्रिसुल कुरानी और मुदर्रिसिल कुरानी कैसे हो, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर भाई कोई डाउट है, अब्दुल्ला भाई क्लियर है, जी क्लियर है। क्लियर है ना, ठीक है, जैसे एक और जी मिसाल जैसे जा हिंद के मुसलमान, ठीक है, तो कहना जा, ठीक है, जा आए हिंद के मुसलमान, आ गए, जा मतलब होता है आना, वो आया, कौन आया, मुस्लिमा, मुस्लिमूना अल हिंद, कौन है, मुस्लिमूना अल हिंद, हिंद के मुसलमान के, माउस से लिख रहे हैं ना, ठीक है, मुस्लिम माउस से लिख रहा है, वो टैबलेट से, पेन से नहीं लिख, डिजिटल पेन से थोड़ा सा गंदा लिखा हुआ, मुस्लिमूना अल हिंद,
ये मुदाफ होगा, क्योंकि मुस्लिमूना जमा सालिम, ये जब मुदाफ बनता है तो हम इसको हज़फ करते हैं, नहीं हज़फ करते। तो कैसे पढ़ा ये जा 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 मुस्लिमुल हिंद, जा मुस्लिमुल हिंद, ठीक है। सेम अगर कहना है हमें क्या, आई तू, मैंने देखा हिंद के मुसलमान, रअई तू, अब रअई तू के बाद मफूल भी आएगा, तो हिंद के मुसलमान, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, मुस्लिमूना या मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमिल हिंदी हो जाएगा। ना मुस्लिमीना लिखा है अल हिंद, ठीक है। मुस्लिमीना, लेकिन क्योंकि मुदाफ बन गया, मुस्लिमीना मुदाफ बनेगा हिंद का, तो नून इसलिए अज़ब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अज़ब हो जाएगा। या देख रहे हैं, या पढ़ा जाए मुस्लिमिल हिंदी पढ़ा जाए, या पढ़ा भी नहीं जा रहा, लिखा जा रहा है, दो सुकून की वजह, लाम पे सुकून, या पे सुकून, मुस्लिमिल हिंदी, ये क्लियर है ना। इस तरीके, अब मजरूर की मिसाल भी आप कर सकते हैं, सअलतु, मैंने पूछा, अन बारे में, किसके बारे में, अन मुस्लिमिल हिंद, वो सेम मुस्लिम ही रहा है, ठीक है। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट जो है ये चीज क्लियर होगा। उसके बाद आते हैं किसी मुस्तस्ना में, ठीक है। मुस्तस्ना, सॉरी मुसन्ना, मुसन्ना मतलब क्या होता है, डुएल, डुअल, तस्निया का सीगा, ठीक है, डुअल तस्निया का सीगा, इसमें जो है, अच्छा, असगर भाई या जमाल भाई पढ़ लिया, अब्दुल्ला भाई, असगर भाई या मिराज भाई, दोनों तो पढ़ना चाहते तो पढ़िए। अल मुसन्ना, अल मुसन्ना, स्पेलिंग इसका, अल मुसन्ना, ठीक है। अल मुसन्ना कौन पढ़ना चाहते हैं आप में से, बस पढ़ना है, उर्दू ही तो पढ़ना है। क्या पढ़ेगा सर? हाँ, अपने से, ठीक है, हाँ पढ़िए, पढ़िए। अजा अल मुदर्रिसानी जद मुदर्रिसानिन जदीदानी। ऊपर से पढ़िए, ऊपर से भी, ऊपर अ, सीगा तस सीगा, अल सीगा, मुसन्ना, हाँ पढ़िए। सीगा तस्निया हालत रफा में आनी और हालत जर और नसब में ईना पर खत्म होगा। के बाद पढ़िए, आईना, आईनी है ना सर? आईनी, 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 सही सही बात है, आईनी। के बाद नीचे पढ़िए, आनी या आईनी। हाँ, अजा अल मुदर्रिसानिल जदीदानी, ठीक है। क्या तर्जमा दोनों पढ़िए, नए असातिज़ा आ गए। ठीक है। अरअयतल मुदर्रिसीना दर्री, मुदर्रिसैनिल उधर ही सही नहीं। सही सही, मुदर्रिसैनिल जदीदैनी, ठीक है। तर्जमा, क्या तुमने दोनों ने असातिज़ा को देखा। ठीक है। तो इससे क्या हालत समझना है, हाँ, दोनों नए हैं सर, दोनों नए नहीं, दोनों नए। दोनों, नए असातिज़ा को देखा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं आनी और ये जो मुसन्ना में क्या लगता है, आनी लग जाता है, ठीक है, आनी लग जाता है। किताबुन किताबानी, मस्जिदुन मस्जिदानी, ठीक है, बैतुन बैतानी, से मुदर्रिसुन, तस्निया बना रही, जमा नहीं है, तो मुदर्रिसानी, आनी। अब उसका नात आ रहा है, नात भी फॉलो करेगा यूनिट को, तो अगर ये तस्निया है, मुदर्रिसानी तस्निया मुसन्ना है, तो नात भी क्या है, नात भी क्या है, मुसन्ना है, आनी लगा हुआ, आनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या है कि अ, आनी जो साउंड है ये अलामत है जिसका मरफू का, और अगर प्रिसाइज एग्जैक्टली बोले तो ये अलिफ जो है ये मरफू की अलामत है। किसमें अलिफ मरफू की अलामत है, तस्निया में, मुसन्ना में, डुअल वाले अस्मा में अलिफ मरफू की अलामत है, ठीक है। नॉर्मल मरफू की अलामत क्या थी, दम्मा, और जम्मा मुजक्कर सालिम में क्या है, वाव मरफू की अलामत। लेकिन डुअल में, मुसन्ना में मरफू की अलामत क्या है, मुसन्ना में मरफू की अलामत जो है वो अलीफ, अलिफ है, अलिफ है, ठीक है, अलिफ है, ठीक है। और नीचे अराइता, अराइता को ऑब्जेक्ट मफूल भी चाहिए, क्या तुमने देखा, तो मुदर्रिसानी से क्या हो जाएगा, मुदर्रिसैन, याद रखो, सैनिल,
सीना जो है वो जमा मुज़क्कर सालिम, ये क्या है सैन, तो किताबानी किताबैन, मस्जिदानी मस्जिदैन, ये मंसूब मजरूर, ठीक है। बैतुन का बैतानी मरफू है, मंसूब मजरूर क्या होगा बैतैन, ठीक है। यदानी दो हाथ, यद मरफू है, यदैनी मंसूब है, यदैनी मजरूर है, दोनों मंसूब मजरूर है। तो मुदर्रिसैनी, तो ये देख रहे हैं मुदर्रिसैनी हो गया। अरअयतल मुदर्रिसैनी, क्या तुमने दोनों असातिज़ा को देखा और दोनों नए असातिज़ा को देखा, तो मुदर्रिसैनी यहाँ पे पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। और उसका नात है ये, नात फॉलो करेगा तो ये भी क्या होगा जदीदैन, ठीक है। ये क्लियर है, उम्मीद है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो अलामत एंडिंग क्या है, आनी ऐनी, एग्जैक्टली मरफू की अलामत क्या है अलिफ, और मंसूब और मजरूर की अलामत क्या है या, या और मजरूर की अलामत क्या है या, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बड़ी, जब मुदाफ इलैहि मुदाफ इलैहि होता है तब क्या होता है, जब मुदाफ बनता है ये तब क्या होता है, पढ़िए। हालत इजाफत में सीगा तस्निया का नून भी हज़फ हो जाएगा, जैसे हाँ, आयना। हालत इजाफत यानी कि जब मुसन्ना वाले अल्फाज को, तस्निया वाले अल्फाज को हम इजाफत करेंगे, यानी जब मुदाफ बनेगा, उस केस में क्या होगा, ओके, उसका जो नून था, जैसे जमा मुज़क्कर सालिम में हुआ था, नून हज़फ हो जाता है, नून उसका हज़फ हो जाता है, ठीक है। अब पढ़िए मिसाल क्या है। आयना तदरुसु उख्ता बिलालिन, बिलाल की दोनों बहनें कहाँ पढ़ती हैं? हाँ, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऐना तदरुसु, ऐना मतलब होता है कहाँ, और तदरुसु का मतलब हो सकता है तुम पढ़ते हो, वो पढ़ती है, दोनों हो सकते हैं ना। गर्दान याद है ना, हम्म, दरस यदरुसु, यदरुसु तदरुसु, यदरुसु वो पढ़ता है, तदरुसु वो पढ़ती है, और यही तदरुसु का मतलब हो सकता है तुम पढ़ते हो। जैसे खरज यखरुजु, तखरुजु तखरुजु, तखरुजु का मतलब हो सकता है वो निकलती है, वो निकलेगी। यखरुजु का मतलब हो सकता है तुम निकलते हो, तुम निकलोगे। याद है ना, शी और यू के लिए कॉमन है, ठीक है। तो ऐन तदरुसु मतलब हो सकता है तर्जमा कहाँ, तुम कहाँ पढ़ते हो, ठीक नहीं। यहाँ आगे देखना पड़ेगा कुछ मरफू अल्फाज है कि नहीं, फाइल आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आगे हम देख रहे हैं कहाँ कहाँ पढ़ती है, ठीक है। कौन, उख्ता बिलालिन। ठीक है। तो ये लफ्ज असल में क्या था, उक्ता, उख्तानी, उक्तानी, हम्म, ओरिजिनल वर्ड क्या है, वाहिद इसका, उख्तानी, वाहिद वर्ड ये था, उख्ता। उक्तुन, ठीक है। उक्तुन क्या हो गया, वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर है उक्तुन, बहन, एक बहन। अब इसको दो बहन करने के लिए क्या हो गया, ये दो बहन करने से क्या होगा, उक्तुन तस्निया बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, क्या ऐड करेंगे, उख्तानी। तानी, हनी ऐड कर दिया, बस उख्तानी। हनी ऐड कर दिया, उक्तानी दो बहन। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, असगर भाई आप जवाब दीजिए, यहाँ पे क्या हुआ है, नू हज़फ हो जाएगा, हजफ क्यों, नून हजफ हुआ, ये सवाल पैदा होता है, ये नून हजफ क्यों हुआ यहाँ पे, क्या रीजन है तस्निया के हजफ। लिए। तस्निया में तो नून आएगा, आनी आएगा, तस्निया में तो आनी आना ही है, तस्निया में आनी आ गया, आनी वाला सीगा आ गया, ठीक है, ये जिसमें मुदाफ अलिफ, है इसीलिए, इजाफत की वजह से। हाँ इजाफत की वजह इजाफत की, उख्ता, उख्तानी को जब हम मुदाफ बना देते हैं ना, उख्तानी मतलब दो बहन, लेकिन जब इसको मुदाफ बनाएंगे, कहना है कि फुला की दो बहनें, फुला की दो बहन, तो यहाँ पर कहना है बिलाल की दो बहनें, बिलाल की दो बहनें, ठीक है, बिलाल की दो बहन। तो यहाँ पे इसको मुदाफ बनाना पड़ेगा ना, उख्तानी, तो उख्तानी बिलाल नहीं कहेंगे कि मुदाफ मुदाफ लीजिए, उख्तानी बिलाल नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, उख्ता बिलाल। तो ये कहा गया जब ये मुदाफ बनता है तो नून हजफ, नून जो है हजफ, हज़फ हो जाएगा। किसका नून हजफ हो जाएगा, वो तस्निया का। नून तो हम्म, आनी तो ला रहे थे, सॉरी नून नहीं, क्या नाम है? हाँ नून हजफ हो जाएगा, ठीक, नून हजफ हो जाएगा। नून आनी, अलिफ नून तो लाए थे हम लोग तस्निया बनाने के लिए, लेकिन ठीक है लाया हमने अलिफ नून, लेकिन वो हजफ क्यों हुआ, जब मुदाफ बनता है तो नून हजफ हो जाता है, ठीक है। तो अलिफ, तो ये अलिफ जो है ना, ये मरफू की अलामत, अलिफ क्या, मरफू की अलामत, जैसे ऊपर देखिए मुदर्रिसानी, ये अलिफ मरफू की अलामत, मंसूब मजरूर की अलामत क्या है, या, नून, नून नहीं या, ठीक है।
یہ الف مجرور منصوب کیا مرفوع کی علامت الف یہاں نون کے ساتھ ہے کیونکہ یہاں پر وہ مضاف نہیں ہے اور منصوب مجرور میں یا علامت ٹھیک ہے. اچھا سر وہ یہ سورہ میں جو سورہ تبت یدا ابی لہبن آتا ہے وہی یدانی ابی لہبن وہ بھی تو ویسے ہی ہو گیا نا مضاف الیہ. ہاں تبت یدا صحیح یدانی تھا اور تبت یدانی ابی لہب ایسا ہے لفظ اوریجنل ابو لہب کے دو ہاتھ ٹھیک ہے برباد ہو جائے تبت یدانی ہے بارک اللہ فیک تبت یدانی لیکن کیونکہ یدا نسبت کرے دو ہاتھ کس کے دو ہاتھ ابو لہب کے دو ہاتھ تو اس لیے یدانی کا نون حذف ہو جائے گی یدا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. یہ کلیئر ہے آپ لوگ ایگزامپل یہ تو اچھا اب پڑھیے یہ والا ایگزامپل پڑھیے یہاں پہ کیا ہوگا. ہاں پڑھیے اتعرفینی اتعری اتعرفینا اتعرفینا اختی بلال اختی بلال ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کیا تم بلال کی دونوں بہنوں کو جانتی ہو؟ ہاں جانتی ہو. یہ جانتی ہو کیوں معنی پڑھ رہے ہیں مطلب بات کر رہے مخاطب فیمیل سے بات کر رہے کیسے پتہ چل رہا ہے کہ فیمیل سے بات کر رہے ہیں کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو فیمیل سے بات کر رہے ہیں؟ تفعلینا کا صیغہ ہے تفعلینا کا صیغہ ہے. ہاں کیونکہ یہ ابھی تو فعل ڈسکس نہیں کرے ہم لوگ لیکن پھر بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے کیا کیونکہ یہ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے. تعریفین تعرفینا جیسے تخرجین تم نکلتی ہو تذهبین تم جاتی ہو تجلسین تم بیٹھتی ہو تم بیٹھو گی تو تعریفین کیا تم جانتی ہو ٹھیک ہے. اینا ساؤنڈ ٹھیک ہے اینا ٹھیک ہے اینا سمجھ میں آ رہی یہ کیا ہے بات کر مخاطب کون ہے کوئی فیمیل مخاطب ٹھیک ہے. ہم مخاطب ہے کسی فیمیل سے. تعریفین کیا تم جانتی ہو بلال کی دونوں بہنوں کو ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ تسنیہ کا الفاظ ہے. اختئی اصل میں کیا تھا اختئی کیا ہونا چاہیے تھا اختانی اختینی لیکن نون حذف کیوں ہوا یہاں پہ نون حذف کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہاں بتائیے کیونکہ مضاف کی وجہ سے. ہاں یہ اختینی مضاف بن جا رہا ہے کیونکہ اختینی مضاف یہاں بن جا رہا ہے ٹھیک ہے مضاف بن جا رہا ہے اختینی بلال لیکن مضاف بن گیا اس لیے نون اس کا ادب. اچھا اختینی اختہ کیوں نہیں پڑھے ہم لوگ یہاں پہ یہ بھی تو پڑھ سکتے تھے اتعرفین اختہ بلال اتعرفین اختہ مفعول بھی ہی آ رہا ہے نا مفعول بھی آ رہا ہے اسی لیے نصب میں آ گیا. یہ بن رہا ہے کس کا مفعول بھی ہے تعریفینہ کا مفعول بھی ہے کون یہ اختئی. تو اوپر میں یہ کیا تھا اختانی تھا کیونکہ یہ فاعل تھا کس کا تدرس اوپر والا لفظ اختانی تھا اختہ آیا نیچے والا اختئی ہے کیونکہ اوپر میں یہ اختہ لفظ فاعل ہے. فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے اس لیے اختانی ہوا اور مضاف بننے کی وجہ سے اختہ ہو گیا ٹھیک ہے. نیچے والے اگزامپل میں تعریفینہ یہ مفعول اختینی مفعول بھی ہے. اختینی کس کا تعریفینہ کا تم جانتی ہو کس کو جانتی ہو تو اختینی مفعول بھی ہے اور اس کا نون حذف کیوں ہوا کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے اس لیے. یہ کلیئر ہونا چاہیے 100% کچھ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہاں پہ کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی یہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے کہ کون سا صیغہ استعمال ہوگا اختانی آئے گا جملے میں یا اختینی آئے گا ٹھیک ہے. جملے میں مدرسانی آئے گا یا مدرسینی آئے گا ٹھیک ہے. یہاں مدرسانی آ رہا ہے یہاں مدرسینی آ رہا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے رہا تک اور یہ مدرسانی کیوں ہے کیونکہ یہ فاعل ہے جا کا اس لیے. اور نیچے والے اگزامپل میں کیا ہوا وہی فاعل ہی چل رہا ہے لیکن یہاں پہ فاعل مضاف بن گیا ہے پھر اس کا الف حذف ہو گیا نون حذف ہو گیا. یہاں پہ یہ اختینی یہ مفعول بھی ہی ہے اور مضاف بن گیا تو اس کا نون حذف ہو گیا ٹھیک ہے. تو اصل مرفوع کی علامت کیا ہے الف. تسنیہ میں مثنیٰ میں مرفوع کی علامت الف ہے نون کو شامل نہیں کرتا علامت ٹھیک ہے. اور یا ہے منصوب اور مجرور کی علامت. اور مجرور کی ایک اور مثال دی گئی یہاں پہ کیا ہے اس کو پڑھ دیتے ہیں اکتبتی ٹھیک ہے اکتبتی ٹھیک ہے کیا تم لکھی did you write
कतबती बता रहा है कि लिखने वाली क्या है, बात किससे कर रहे हैं, फीमेल से, ठीक है। कतबती, कतबता होता मतलब क्या होता है, बात हो रही किससे, मेल से, ठीक है। अकतबती, डिड यू राइट, क्या तुम लिखी, किसको लिखी, इला, इला उख्तई बिलालिन, इला उख्तई बिलालिन, ठीक है। तो अब इसमें कुछ हज़फ है क्या, उख्तई बिलालिन में कुछ हज़फ है, नून हज़फ है। नून हज़फ है, ठीक है। तो ओरिजिनली क्या था, ये उख्तैनी, ओरिजिनली ये क्या है, उख्तैनी, लेकिन इला आने, इला आया, अच्छा उख्तैनी हुआ कि उख्तानी क्यों नहीं है, कि उख्तैनी था, तो मजरूर हो उख्तैनी था गया ना, मजरूर हो गया हाँ इसीलिए। मजरूर हुआ इला की वजह से, तो ये उख्तैनी है, लेकिन इला हटा दे तो उख्तानी हो जाता है। तो अब इसका सवाल बताओ, तो नून फिर क्यों हटा, नून इसलिए हटा क्योंकि ये मुदाफ बन रहा है, इसलिए नून हटा। मुदाफ इलैहि कौन है, बिलाल मुदाफ इलैहि। ये सवाल ये एकदम पूरे जहन और दिमाग में आपका बैठ जाना चाहिए, क्या चीज, ये उख्तय है। अच्छा क्यों उख्तय है, क्योंकि ये उख्तय है ये, और नून इसका हज़फ है। नून अगर रहता तो क्या होता, उख्तैनी होता। नून नून अगर ये बिलाल नहीं होता तो क्या होता, उख्तैनी होता। अच्छा उख्तैनी क्यों है, उख्तानी क्यों नहीं है, अच्छा क्योंकि इला है इसलिए उख्तैनी हो गया, इला नहीं होता तो उख्तानी होता, ठीक है। तो आनी होगा या आईनी होगा, वो आपको सबसे पहले डिटरमाइन करना है, पता करना है, ठीक है। जुमले में रोल देख करके, जुमले में इसका रोल क्या हो रहा है, फाइल बन रहा है, मफूल भी बन रहा है, या हर्फ जर के बाद आ रहा है, इससे आपको रोल तय करना है कि जुमले में उसका क्या रोल है। सेकेंड है कि क्या उसका नून हज़फ होगा कि नहीं होगा। तो अगर मुदाफ इलैहि और उसका निस्बत हो रहा है मुदाफ इलैहि की तरफ, हज़फ होगा, नहीं तो नून हज़फ नहीं होगा। नून हज़फ का कायदा जो है दोनों के लिए हो रहा है, जब हम मुज़क्कर सालिम हम लोग पढ़े उसमें नून हज़फ होता है, उसमें भी नून हज़फ होता है, ठीक है। तो अच्छा, तो हम लोग फिलहाल इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है। बाद में इंशाल्लाह देखते हैं, मस्जिद में करे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जा रहा है, इसलिए हम आज से ही बात करें, ठीक है। तो कुछ सवाल होगा तो आप ग्रुप में कर लीजिएगा, ठीक है ना, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कल ही आप कोई और दिन क्लास करने की, ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।